With work on the Ram Temple in Uttar Pradesh's Ayodhya going on in full swing, the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust General Secretary Champat Rai on Saturday shared pictures of the nearly finished Sanctum Sanctorum where the idol of Ram Lalla will be installed. The Ram Temple in Ayodhya, remember, will be ready for consecration on the 22nd of January next year. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust will send letters to nearly 6,000 people to attend the Pran Pratishtha in Ayodhya. Prime Minister Modi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath are amongst the prominent personalities who are expected to attend the event. Meanwhile, the Ram Temple Trust will finalize on the 15th of December which of the three Ram Lalla idols being sculpted will be installed in the Sanctum Sanctorum. All right, let's quickly show you those details, these pictures, and of course, what can be read into them. These extremely interesting, beautiful pictures of course, the Sanctum Sanctorum there. The Ram Janmabhoomi Trust has shared these updates on the Ram Temple. You can see there these pictures, of course, of inside. This is the Sanctum Sanctorum of the temple. This is the area. These are the pictures, of course, of the Sanctum Sanctorum. Remember, that space is where the Ram idol will be installed. Of course, right now there are three options. It's being decided by the temple trust which of the three options will be chosen. Light fitting work has also been completed now in the temple. Remember, the temple, of course, will be beautifully lit up, and this spot is where the idol will be placed on the 22nd of January when that special ceremony will take place there in Ayodhya. So these, of course, are beautiful pictures which have come in. You can see the intricate design work there, which of course has happened. These are the interiors of the temple. This is the inside Sanctum Sanctorum of that temple. Akhand Singh is joining us for more details on this story. Akhand, ये तस्वीरें जो हैं ये सामने आई हैं और लगातार वायरल हो गई हैं क्योंकि एक झलक अब लोगों को मिल गया है अंदर का नज़ारा कैसे होगा और अंदर जो स्थान है जहां रामलल्ला विराजमान होंगे वो कैसे लगेगा। जी बिल्कुल, देखिए, भगवान रामलला यानी 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आराध्य का दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। 22 जनवरी की भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले जो राम भक्त अपने घर पे हैं उनको भगवान रामलला के मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति से लगातार ट्रस्ट रूबरू कराता है। ऐसे में भगवान रामलला की दिव्य और अलौकिक तस्वीर जनवरी की ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा की है। यूं कहा जाए कि भगवान राम की नगरी में जो भक्त अपने घर पे बैठे हैं वो वहां से ही भगवान रामलला का दर्शन पूजन कर सकेंगे, देख सकेंगे। तो ऐसे में ट्रस्ट लगातार तस्वीरों को साझा करता है क्योंकि 22 जनवरी का वो दिन ऐतिहासिक होगा जब इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश के प्रधानमंत्री के साथ अंगड़मानी इसके साक्षी होंगे। तो ट्रस्ट लगातार तैयारियां कर रहा है क्योंकि आराध्य 22 जनवरी को विराजमान हो जाएंगे, इससे पहले अयोध्या में पूरी तैयारी कर ली गई है। मंदिर का जो काम हो 95% से अधिक पूरा कर लिया गया है। बस अब आराध्य के विराजमान होने का इंतजार है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो राम भक्त है वो भी बढ़ चढ़ करके भगवान राम की नगरी में दर्शन करने के लिए आतुर है, लालायित है। तो जिसको लेकर के जिला प्रशासन और ट्रस्ट लगातार तैयारी करा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या का दौरा करते हैं और भगवान राम मंदिर की जो कार्य है उनकी समीक्षा करते हैं। जिला के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारी रहते हैं, साधु संत रहते हैं। तो यूं कहा जाए 4000 साधु संत तो उसके साक्षी होंगे जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 2500 संभ्रांत ऐसे लोगों को बुलाया गया है जो फिल्म जगत से होंगे, खेल जगत से होंगे, वकील होंगे, डॉक्टर होंगे, सेना से रिटायर लोग होंगे। तो सभी को बुलाया गया है। ऐसे में ट्रस्ट ये तस्वीरें साझा करके जो अलौकिक तस्वीर है वो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा की है। तो ये तस्वीरें काफी दुर्लभ तस्वीरें, खूबसूरत नक्काशी के साथ भगवान राम की का मंदिर बना है और राम मंदिर के साथ ही जो जिस तरीके से 500 वर्षों का ये संघर्ष है वो खत्म हो गया है। अब अपने आराध्य के इंतजार को लेकर के लोग लालायित है कि कब अपने आराध्य का दिव्य और भव्य महल में दर्शन करें, जिसको लेकर के ट्रस्ट लगातार तैयारियां पूरी हो गई है। जिला प्रशासन और ट्रस्ट यही मनसा है जो भी भगवान राम के भक्त अयोध्या पहुंचे उनको किसी प्रकार की समस्या कठिनाई न हो, जिसको लेकर भी बेहद खास तैयारी की गई है। टेंट सिटी बनाई गई, होटल और धर्मशालाओं को बुक किया। जो वहीं अयोध्या के जो संभ्रांत साधु संत लोग हैं वो भी इस जिम्मेदारी उठाए। जो भी भक्त अयोध्या पहुंचेंगे उनके रहने, उनके खाने, उनके भोजन की व्यवस्थाएं वो स्वयं मुहैया कराएंगे। तो ऐसे में जो भगवान रामलला का मंदिर है ये आस्था का केंद्र है, भगवान राम की नगरी, मंदिर मूर्तियों का ये शहर है। इस शहर में भगवान राम की नगरी में जो भी भक्त आएंगे वो अपने आराध्य का दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में ट्रस्ट लगातार तैयारी कर रहा है। भगवान राम की नगरी में जिस तरीके से भव्य मंदिर बन रहा है,
ट्रस्ट लगातार इसकी तस्वीरें साझा करके अपने भक्तों को हमेशा ये दिखाता है कि मंदिर का निर्माण कार्य कितना पूरा हो गया। तो ऐसे में भगवान रामलला का दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। बस आराध्य के जनवरी में इंतजार है कि वो आराध्य अपने गर्भगृह में विराजमान। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें 22 जनवरी की तैयारी के बारे में, तो क्या क्या अभी खास प्लान्स जो हैं वो बनाए गए हैं, क्या क्या खास तैयारियां हैं वहां? और अगर हम बात करें काम की, तो काम लगभग कब तक पूरा हो जाएगा? क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं कि 22 तारीख या 21 तारीख तक नहीं, मगर बहुत पहले तक काम जो है वो पूरा हो जाएगा। जैसे आप पहले बता रहे थे हमें अखंड की शायद 95% काम पूरा हो चुका है। बाकी का जो काम है वो कब तक पूरा होगा? क्या कोई तारीख सेट की गई है अब तक? जी बिल्कुल, देखिए आज जो नृपेंद्र मिश्रा जी हैं वो अयोध्या पहुंचे हैं और वो स्थलीय राम जन्म भूमि पथ मंदिर निर्माण मंदिर के कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने स्थलीय उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 30 दिसंबर तक ये सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। 30 दिसंबर तक का लक्ष्य रखा गया है कि अयोध्या की जो सड़कें हैं, गलियां हैं, जो जितने चौराहे हैं, उनके साथ साथ भगवान रामलला के जो मंदिर है, मंदिर परिसर के साथ साथ जो प्रधानमंत्री का जिस द्वार से आएंगे वो सबको लगातार सुसज्जित किया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है। तो अयोध्या में जिस तरीके से भगवान रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, इससे पहले तय समय सीमा तक पूरे काम कर लिए जाएंगे, इसको लेकर लगातार बैठकें की जाती है। जिला प्रशासन के साथ जिला के आला अधिकारी भी मौजूद होते हैं। तो आज ट्रस्ट की बैठक चली। इस बैठक में भी काफी अहम फैसले होने, क्योंकि भगवान रामलला की जो अस्थायी मूर्ति है, जो बालक स्वरूप के भगवान रामलला विराजमान होंगे, उनकी भी मूर्ति पर फाइनल मोहर लग सकती है। तो ऐसे में जब भगवान रामलला विराजमान होंगे, 30 दिसंबर के पहले ही सारे कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। फाइनल टच भी का काम बस कुछ थोड़ा बहुत काम बचा है। लगभग 95% से अधिक काम पूरा हो चुका है। तो ऐसे में बात किया जाए, जो अयोध्या नगरी है, उसमें रोड हो, सड़कें हो, गलियां हो, इनका भी काम पूरा कर लिया गया है। जगह जगह राम स्तंभ लगाए जा रहे हैं। हर चौराहे का नाम बदला है। 17 ऐसे चौराहे जो भगवान राम के जीवन पर आधारित जो साधु संत होंगे उनके नाम पर, और भगवान माता सीता की जो चूड़ामणि उनके नाम पर, तो सभी चौराहों पर राम स्तंभ लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरी तैयारी कर ली गई है कि जब आराध्य विराजमान हो और देश के प्रधानमंत्री इसके साक्षी हो, तो पूरी अयोध्या में किसी प्रकार की कोई कमी न रही। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है। सीसीटीवी कैमरे और फुटेज की नजर से सपन निगरानी की जाए। जो भी मंदिर में प्रवेश कर रहा है, 3 घेरों में रामनगरी की सुरक्षा होती है। इन येलो जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन, इन तीनों येलो जोन और रेड जोन में जो भी प्रवेश करता है उनके वाहनों की सघन चेकिंग होती है लगातार। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जब अयोध्या पहुंचेंगे, देश के भगवान रामलला की मंदिर के निर्माण की साक्षी होंगे, तो ऐसे में लगभग तैयारी पूरी कर ली गई। जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली, ट्रस्ट ने भी पूरी कमर कस के रखी है, क्योंकि 25,000 लोगों के रहने, खाने और भोजन की व्यवस्था ट्रस्ट कर रहा है। तो तैयारियां जो है वो धरातल पर है, एकदम पूर्ण कर ली गई। 30 दिसंबर तक फाइनल ये तैयारी पूरी कर ली जाएगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.